Assalamu alaikum dear students. This is me Said Shazia, your concerned physics teacher. Today I am going to present my next lecture, and it is in fact the last lecture of this chapter, electricity for class 6th. First of all, we will make revision what we have studied till now. We have studied what is electric cell. First of all, electric cell is a source of energy. It is actually the small source of energy by which we run small devices, small electric devices like electric toys, TV remotes, set-top box remotes, torches, etc. ठीक है? Production of electricity in a cell. इलेक्ट्रिक सेल जो होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं बाय यूजिंग द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल. बाय यूजिंग द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल. This electric cell has two terminals. One is positive terminal and another is negative terminal. This dry cell is used in our homes. It has two terminals. One is positive terminal and another is negative terminal. The positive terminal is carbon rod which is inside it, and the negative terminal is the zinc container. ठीक है? Then we studied about battery. What is battery? Battery is combination of two or more cells. Then we have studied about electric bulb. This is the presentation of electric cell. Yes, electric battery. How electric cells are combined to form an electric battery. This is positive terminal of the battery and this one is negative terminal of the battery. ठीक है? Then we have studied about electric bulb. What is electric bulb? Electric bulb is a glass case in which there is a thick wire which we call as filament. ठीक है? Filament. It is supported by two thick wires. One of these thick wires is connected to the metal case around the base of the bulb and the other is connected to the metal tip of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they don't touch each other. This is very important. These two terminals must not touch each other. ठीक है? Then we studied about electric circuit. What is electric circuit? It is an unbroken path through which the electricity flows. ठीक है? Electric circuit. This is shown here. Electric circuit. ठीक है? Electric circuit यहाँ पे. This is electric circuit shown here. This is cell. This is one terminal of the cell positive. This is negative terminal of the cell. Then we have connected two wires to the two terminals of the bulb. This is a simple example of electric circuit. ये किसकी example है? Electric circuit की. हमने क्या बोला था? Electric circuit is an unbroken path through which the current flows. ठीक है? There are two types of circuit. One is open circuit and another is closed circuit. If there is any gap in the path of circuit, the bulb does not lit up. अगर कोई भी गैप होगी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो बल्ब क्या होगा? ये लिट अप नहीं होगा. ठीक है? ये बल्ब जो है ये ग्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा अगर पाथ में कोई भी डिसकंटिन्यूटी होगी. ठीक है? उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट. देन कम्स द क्लोज्ड सर्किट. क्लोज्ड सर्किट इज ये जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया जिसमें एक ड्राई सेल है, इसको हमने दो वायर से एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया है. इसमें क्या होगा? बल्ब जो है ये लाइट अप होगा. ठीक है? व्हेन द बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन बल्ब एंड द वायर फॉर्म्स अ कंप्लीट पाथ. अगर हमने ड्राई सेल के साथ ये जो वायर्स कनेक्ट की हैं बल्ब के साथ, ड्राई सेल के दो टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट किया है विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. ठीक है? अगर इनके बीच में कंटिन्यूअस पाथ हो, क्या हो? कंटिन्यूअस पाथ. कहीं पे जो है ये पाथ ब्रोकन ना हो तब ये क्या बनाती हैं? क्लोज्ड सर्किट. करंट क्या फ्लो होती है? ऑलवेज थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट, नॉट थ्रू एन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट जो है ये एक डिसकंटिन्यूटी होती है. ठीक है? Flow of electric current in the circuit. As soon as the path from one turn of the electric cell to the other is complete, then the current starts flowing from the cell to the bulb and the bulb glows. इसी से जब भी करंट
चलती है फ्रॉम ड्राई सेल टू दिस बल्ब, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ है तो बल्ब क्या करना स्टार्ट होता है, ग्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। करंट कैसे सर्किट में चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच, इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच। Electric switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it to stop or start the flowing of electric current. स्विच के दो केस होती है, जैसे ओपन सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, ऐसे स्विच में भी दो केस होते हैं। एक होती है ओपन स्विच, दूसरी होती है क्लोज्ड स्विच। ओपन स्विच का मतलब हुआ कि सर्किट कहीं पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, सर्किट कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, सर्किट कहीं पे डिसकंटिन्यूअस, देयर इज समवेयर सर्किट इज ब्रोकन, देयर इज नो कंटिन्यूटी इन द पाथ, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच के व्हेन द स्विच ब्रेक इज द सर्किट, ठीक है। दूसरा केस होता है क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच किससे हम कहते हैं, व्हेन द स्विच कंप्लीट इज द सर्किट, जो स्विच होती है वो सर्किट को कंप्लीट करती है। यहाँ पे केसेस दिखाए गए, देखो ये क्लोज्ड स्विच है, ठीक है, यहाँ पे सर्किट जो है कंप्लीट है या कंटिन्यूअस सर्किट है। यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन, ठीक है, यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है, दैट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो। दिस इज द केस ऑफ क्लोज्ड स्विच, ठीक है। ये वाला केस जो है ये क्लोज्ड स्विच का है, ये वाला केस जो है ये किसका है, ओपन स्विच का, ठीक है। Then we have studied about conductors and insulators. We have actually classified the substances on the basis of conductivity. First of all, we will see what are conductors. Conductors are the materials which allow electric current to pass through them, ठीक है, जो वो वाले सब्सटेंसेस जो करंट को खुद में से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। उसमें क्या एग्जांपल आते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है, ज़्यादातर जो भी मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी वो भी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसे अगर इम्प्योर वाटर हमारे पास होगा वो भी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये वो वाले मटीरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, विच डज नॉट लेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर, इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है, रबर है हमारे पास, ठीक है, वुड है, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। मैंने एक डायग्राम ली है, यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में क्या है, मैंने 4 केसेस लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया यूजिंग इंसुलेटर। देखो ये ड्राई सेल है, ड्राई सेल के 2 टर्मिनल्स को हमने किया है कनेक्ट विद द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब थ्रू एन इंसुलेटर। हमने यहाँ पे बीच में क्या डाला है, एक इंसुलेटर, ये एक रबर हमने बीच में इसमें लगा इस सर्किट में। करंट जब इस ड्राई सेल से आएगी यहाँ पे पहुँचेगी तो इंसुलेटर क्या करेगा, ये इस करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जब करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं हो तो लैंप क्या होगा, ये ग्लो नहीं होगा, ठीक है। दिस लैंप विल नॉट ग्लो, इन दिस केस दिस लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है। दिस इज हाउ इंसुलेटर वर्क्स इन ए सर्किट। इंसुलेटर जो है ये करंट को आगे नहीं जाने देता है, ठीक है, इट ओबस्ट्रक्ट्स द करंट, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल ली है यूजिंग कंडक्टर। हमने एक की लगाई है, यहाँ पे की क्या है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब ड्राई सेल से करंट निकलेगी तो की में जाएगी, ठीक है, की विल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सो द लैंप विल ग्लो, यहाँ पे लैंप क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस हमने लिया है यूजिंग एन इंसुलेटर। हमने एक पेंसिल यहाँ पे लगाया, ठीक है, पेंसिल क्या है, इट इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे भी लैंप जो है ये ग्लो नहीं होगा, लैंप ग्लो नहीं होगा, बिकॉज इंसुलेटर जो है इट विल नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंडक्टर यूज़ किया। हमने एक देखो यहाँ पे एक मेटल हमने बीच में लगाया, ठीक है। जब करंट इस ड्राई सेल से निकलेगी, ठीक है, इस करंट कंडक्टर के थ्रू जाएगी, ठीक है, इट विल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट एंड द करंट विल रीच द लैंप एंड इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। करंट की वजह से ये लैंप जो है ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, द लैंप विल ग्लो, ठीक है। दीज आर द सर्किट्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।